Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. In this lecture, we will discuss the hormones that are produced from a superficial heterocrine gland, and that heterocrine gland is called pancreas. We will discuss what is the role of glucagon, what is the role of insulin, what is the role of somatostatin. Then we will discuss also a very important disease that is associated with this special endocrine gland, and that disease is called diabetes mellitus. We will also discuss the types of diabetes mellitus, that is this type first diabetes and then type second diabetes. Let us discuss the things in detail. See, the first point you will keep in mind with regard to pancreas is that pancreas is what? Pancreas is simply defined as an elongated, it is an elongated organ, it is an elongated organ that is located in the loop of, it is located in the loop of the first part of the small intestine, and that first part of the small intestine is called duodenum. That is called as a duodenum. Okay beta. Second point, if we talk about it is color, it is normally yellow colored. It is a yellow colored. Okay beta. Third point, with regard to its length, it is normally 15 centimeter in length. इसकी लेंथ जो होती है बेटा वो होती है 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि बेटा ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज इज द सेकंड, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, it is the second largest endocrine gland. Okay beta, the first largest endocrine normally the largest endocrine gland in our body is thyroid gland, and the second largest endocrine gland is pancreas. Okay beta. Next point with regard to pancreas is that pancreas is an example of, it is an example of heterocrine gland. It is an example of heterocrine gland. Like that, we have discussed in the last video the testes and ovaries. Testes and ovaries are also the examples of heterocrine glands. And हेटेरोक्राइन ग्लैंड मीन्स व्हाट? हेटेरोक्राइन ग्लैंड बेटा उस ग्लैंड को बोलते हैं जो पार्टली एंडोक्राइन होता है और पार्टली एक्सोक्राइन होता है. ठीक है बेटा. सो विच इज पार्टली एंडोक्राइन, जो बेटा पार्टली एंडोक्राइन होता है, और एंड जो बेटा पार्टली क्या होता है? जो पार्टली एक्सोक्राइन होता है. ऐसे वाले ग्लैंड को हम बेटा बोलेंगे क्या? ऐसे वाले ग्लैंड को हम बेटा बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंपोजिट ग्लैंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेटा कंपोजिट ग्लैंड. Okay, now if we will look towards the endocrine part, if I will talk about the endocrine part जो बेटा आपके pancreas का होता है, that is actually made up of superficial groups of epithelial cells, and those epithelial cells form a special structure, and that is better called as the islet, that is better called as the islet of Langerhans. उसको हम बेटा बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहन. आइसलेट ऑफ लैंगरहन को आइसलेट ऑफ लैंगरहन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब्ड बाय अ बायोलॉजिस्ट हुज नेम वाज बेटा लैंगरहन. बट एक्चुअली व्हाट दे आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ, दे आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ व्हाट? दे आर ग्रुप ऑफ इप्थीलियल, दे आर बेटा ग्रुप ऑफ इप्थीलियल सेल्स. ओके बेटा. अब अगर हम बात करें बेटा ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं, इसमें बेटा 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द अल्फा सेल, दैट इज बेटा कॉल्ड एज द अल्फा सेल. ओके बेटा. एंड अल्फा सेल is a cell that is responsible for the production of a hormone, and that hormone is called glucagon. That is better called as a glucagon. Okay beta. Second type of cell is what we call as a beta cell. उसको हम बेटा बोलते हैं beta cell. Beta cell is that cell which is responsible for the production of a hormone, and that hormone is called beta क्या? That hormone is called insulin.
Okay, then we have the third type of the cell. जो third type of cell इस isolate of Langerhans में होती है उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? That is बेटा called as a delta cell. Delta cell वो cell होती है जो responsible होती है for the formation of another hormone, and that hormone is बेटा called as a that is बेटा called as a somatostatin. So these are the three types of hormones which are produced by these three types of cells, and these cells are present in the isolate of Langerhans. So isolate of Langerhans जो होता है बेटा ये कौन सा पार्ट बनाता है इस पैनक्रियाज का? एंडोक्राइन पार्ट. फिलहाल हम देखेंगे इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है. ठीक है बेटा. सेकंड पार्ट जो आपके इस पैनक्रियाज का होता है उसको हम बेटा बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट. एक्सोक्राइन पार्ट बेटा वो पार्ट होता है आपके पेनक्रियाज का जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए स्पेशल जूस, एंड दैट जूस इज व्हाट कॉल्ड, उस जूस को हम बेटा बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस. दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ पैनक्रियाटिक जूस. ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसके अंदर सर एक्चुअल में क्या होता है? इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं. सो इट इज एक्चुअली लोडेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एंजाइम्स, एंड दोज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ व्हाट? दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ व्हाट? डाइजेशन ऑफ बेटा कार्बोहाइड्रेट्स. एक तो वो डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट की. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पैनक्रियाटिक एमाइलेज की, ठीक है बेटा, हमारे पास एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज नॉर्मली उस एंजाइम को बोलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, फॉर एग्जांपल स्टार्च की. ठीक है, लेकिन एमाइलेज हमारी बॉडी में दो जगह निकलता है. एक तो जो आपके बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, दे आल्सो प्रोड्यूस अ सैलिवरी एमाइलेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ टाइलिन, बट दिस इज द पैनक्रियाटिक एमाइलेज. पैनक्रियाटिक एमाइलेज उस एमाइलेज को बोलते हैं जो इसी स्टार्च की बेटा डाइजेशन करता है. ठीक है, सो दिस इज डाइजेशन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द पैनक्रियाटिक एमाइलेज. फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, तो इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस प्रोटीन्स लाइक दैट ऑफ द ट्रिप्सिनोजन. ठीक है बेटा, एंड इट आल्सो कंटेन्स एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स, फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स लाइक दैट ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज. लाइपेज बेटा उस एंजाइम को बोलते हैं जो किस चीज की डाइजेशन करता है? फैट्स की. ट्रिप्सिनोजन किस चीज की डाइजेशन करेगा? प्रोटीन की. ट्रिप्सिनोजन नॉर्मली इन एन इनएक्टिव फॉर्म होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, एंड एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड ट्रिप्सिन. सेम इज द केस विद द कार्बोहाइड्रेट्स. द एंजाइम which is present in the pancreatic juice and which performs the digestion of starch, that is actually called as a pancreatic amylase. So these constitute the exocrine part of what? यही exocrine part बनाता है आपके पेनक्रियाज का. लेकिन अब हमें यहाँ डिस्कस क्या करना है? हमें यहाँ बेटा डिस्कस करने हैं हार्मोन्स, उनके क्या फंक्शंस होती है और जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड है वो चीजें हम बेटा डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट दिस स्पेशल हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लूकागॉन. Glucagon. देखिए बेटा, see what is glucagon. The first point you will keep in mind with regard to this glucagon is that glucagon beta is a hormone that is produced by, it is a hormone that is produced by alpha cells. तो ये जो हार्मोन होता है बेटा, इसको जो अल्फा सेल्स आपके आइसोलेट ऑफ लैंगरहन में होती है वही बेटा इस ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करती है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, ये ग्लूकागॉन जो होता है बेटा, इट इज एक्चुअली अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. पॉलीपेप्टाइड हार्मोन किसको बोलते हैं? उस हार्मोन को बोलते हैं जो बना हुआ होता है किनका बेटा? अमाइनो एसिड्स का. और टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो आपके इस ग्लूकागॉन में होते हैं वो होते हैं बेटा, इट इज composed of how many amino acids? 29 amino acids. ठीक है बेटा, तो दिस इज द थर्ड पॉइंट.
नेक्स्ट पॉइंट विद रिगार्ड टू ग्लूकागॉन इज दैट ये जो ग्लूकागॉन होता है इसका क्या काम होता है, इट इज एंटागोनास्टिक, इट इज बेटा एंटागोनास्टिक टू दिस व्हाट वी कॉल एज अ इंसुलिन, इंसुलिन, क्योंकि एंटागोनास्टिक का मतलब क्या हुआ, जो अपोजिट में एक्शन करते हैं। अगर ग्लूकागॉन जो होता है इसका काम बेटा ये होता है कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करता है, एज कंपेयर टू अगर हम बेटा इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन इसका अपोजिट एक्शन करेगा, मींस इंसुलिन डिक्रीज करेगा शुगर लेवल इन द ब्लड। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस टर्म एंटागोनास्टिक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट विद रिगार्ड टू दिस हार्मोन आप याद ये रखेंगे कि ये ग्लूकागॉन जो होता है इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ हाइपर, इट एक्ट्स एज अ हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर, ग्लाइसेमिक फैक्टर, ठीक है बेटा, या हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन में लिख लेता हूं होता है ये। हाइपर ग्लाइसेमिक का मतलब क्या हुआ कि ये इंक्रीज करता है किसकी लेवल को ब्लड में, ग्लूकोज की लेवल को, या हम सिंपल बोलेंगे ये बेटा इंक्रीज करता है लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ हाइपर ग्लाइसेमिक। इफ वी टॉक अबाउट द इंसुलिन, इंसुलिन will act as a what, it will act as the hypoglycemic factor. This will be also called as the diabetogenic, diabetogenic, this will be also called as a diabetogenic factor. Diabetogenic factor का मतलब ये हुआ अगर ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होती है आपके ब्लड में तो then it will create a disease and that disease is beta called as a diabetes mellitus. That is why it is called beta diabetogenic factor, ठीक है बेटा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके क्या फंक्शंस होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय दिस स्पेशल हार्मोन। सी द फर्स्ट फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय दिस ग्लूकागॉन इज दैट इट नॉर्मली इंक्रीजेस, इसका काम क्या होता है बेटा कि ये इंक्रीज करता है किसको, शुगर लेवल को ब्लड में, but it increases the sugar level of the blood। लेकिन कैसे ये शुगर लेवल इंक्रीज करेगा ब्लड में, बाय स्टिमुलेटिंग अ स्पेशल प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट कॉल्ड, दैट प्रोसेस एक्चुअली कॉल्ड एज अ ग्लाइको, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लाइकोजीनोलाइसिस, उसको बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस वो प्रोसेस होती है बेटा जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड होता है जो स्टोर होता है कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स में, जैसे लिवर सेल्स की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मसल सेल्स की बात करें तो ये ग्लाइकोजन कहां पर होता है, लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ हेपेटोसाइट्स। दिस इज आल्सो स्टोर्ड इन दी स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज मसल सेल्स। तो लिवर सेल्स और मसल सेल्स में ये कन्वर्ट होगा किस में बेटा, ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को द प्रोसेस दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ दिस ग्लाइकोजन व्हिच इज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मींस इट इज मेड अप ऑफ many glucose molecules. So when this glycogen will be converted into glucose is a monosaccharide. This process actually called as a glycogenolysis, ठीक है बेटा। So this is the first function that is performed by this special hormone that we call as a glucagon. सेकंड फंक्शन इसकी क्या होती है बेटा कि ये ग्लूकागॉन क्या करेगा बेटा, इट विल स्टिमुलेट अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ it stimulates a special process and that process called बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको हम बेटा बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ सर, ग्लूकोनियोजेनेसिस बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं ग्लाइसरॉल है बेटा, जैसे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल बेटा लैक्टेट है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, या फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा, ये सारे के सारे जब कन्वर्ट होते हैं किसमें बेटा, जब ये सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, ऐसी वाले प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो अनदर फंक्शन ऑफ दैट दिस ग्लूकागॉन इज दैट इट स्टिमुलेट्स अ स्पेशल प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फंक्शन इसकी क्या होती है इस ग्लूकागॉन की, वो ये होती है बेटा कि ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं लिपो, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब सर क्या हुआ,
लिपोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन होगा बेटा किनका, फैट्स का, ऑक्सीडेशन होगा बेटा फैट्स का। ठीक है बेटा, जब ऑक्सीडेशन फैट्स की होती है तो वहां से क्या निकलते हैं बेटा, याद रखेंगे बेटा, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडीज भी बनते हैं, कीटोन बॉडीज भी बेटा बनते हैं। कीटोन बॉडीज क्या क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं बेटा यहां पर एसीटेट, एसीटेट इज ए कीटोन बॉडी, एसिटो एसीटेट, एसिटो एसीटेट, या और एक इंपॉर्टेंट दिस कीटोन बॉडी होती है, उसको हम बेटा बोलते हैं 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, इसको बेटा बोलते हैं 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। दीज आर द कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज कहां से बनते हैं, दीज कीटोन बॉडीज आर फॉर्मड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स। दैट इज व्हाई वी कैन से कि ये जो ग्लूकागॉन होता है इसका और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है बेटा कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ बेटा कीटोन बॉडीज। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट functions that are performed by this special hormone, and that hormone is beta called as a glucagon. Okay बेटा, let us move ahead. इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे कि what are the functions of another hormone. That hormone is beta called as insulin. That is beta called as insulin. See what is insulin. The first point you will keep in mind that insulin जो होता है ये भी क्या होता है, it is also a proteinaceous, it is also a proteinaceous hormone. It is a proteinaceous hormone that is made up of how many amino acids? It is made up of 51. It is beta made up of 51 amino acids. ठीक है बेटा, 51 amino acids। और जो ये 51 amino acids होते हैं बेटा, इनको ये अरेंज होते हैं इन 2 चेन्स। एक होती है बेटा A चेन और दूसरी होती है बेटा B चेन, A चेन और B चेन। ठीक है बेटा, इस A चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसमें बेटा कितने होते हैं, 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊं, दिस इज बेटा द A चेन, दिस इज बेटा द B चेन। ओके बेटा, ये जो A चेन और B चेन होते हैं ना, ये बेटा आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स, एंड दोज बॉन्ड्स यू नो व्हाट दोज आर कॉल्ड, दोज आर बेटा कॉल्ड एज अ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। एक S और दूसरा S, सल्फर जो होता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज लाइक दैट ऑफ द फॉर एग्जांपल A chain, and for example this is a B chain, but this A chain will be made up of how many amino acids, 21 amino acids, and this B chain will be made up of 30 amino acids. ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें बेटा कि ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन इज व्हाट, इट इज अ हाइपो, इट एक्ट्स एज अ हाइपोग्लाइसेमिक, it acts as a hypoglycemic factor. हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर बेटा किसको बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर उस फैक्टर को बोलते हैं जो बेटा ग्लूकोज की लेवल को या शुगर की लेवल को ब्लड में कम कर देता है। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। ठीक है बेटा, इट इज, ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन इज आल्सो द अर्लीएस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड द अर्लीएस्ट नोन हार्मोन। सबसे पहले जिसको मतलब पाया गया था, डिस्कवर किया गया था, दैट इज बेटा कॉल्ड एज दिस व्हाट वी कॉल एज इंसुलिन। ओके बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि ये इंसुलिन का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन क्या क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड देखिए बेटा। फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, सबसे पहली फंक्शन इसकी बेटा ये होती है कि इंसुलिन क्या करता है, जैसे मैंने बताया इंसुलिन एक्ट एज हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, मीन्स ये क्या करेगा बेटा, ये डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस शुगर लेवल, इट डिक्रीजेस शुगर लेवल इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को या शुगर की लेवल को बेटा कम करता है। लेकिन कैसे, बाय स्टिमुलेटिंग ए स्पेशल प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लाइकोजेनेसिस। बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस सर क्या होती है,
ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है बेटा कि ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइकोजन में। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लाइकोजेनेसिस। एज द नेम इंडिकेट्स, ग्लाइको इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड विद दिस पॉलीसैकेराइड एंड दैट पॉलीसैकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। सो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज इज सिंपली कॉल्ड एज अ बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है बेटा, तो ये डिक्रीज करता है। सेकंड फंक्शन इसकी क्या होती है बेटा कि ये जो इंसुलिन होता है ये बेटा क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स दैट प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस बेटा कॉल्ड एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इट प्रिवेंट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेटा ये इस प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। मतलब कि ये आपके ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स होते हैं जैसे लैक्टेट है, ग्लाइसरॉल है, ठीक है बेटा, ये या जैसे कुछ मतलब अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये इस वाली प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। इट डज नॉट अलो द कन्वर्शन ऑफ से फॉर एग्जांपल लैक्टेट, से फॉर एग्जांपल ग्लाइसरॉल टू गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। दैट प्रोसेस बेटा कॉल्ड एज दैट इज हाउ इट प्रिवेंट्स दिस प्रोसेस, दैट प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो हमने अभी पढ़ा था, जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन क्या करता है बेटा, वो स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस को, मतलब वो हेल्प करता है इन द कन्वर्शन ऑफ दोज नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स इनटू द ग्लूकोज। व्हाइल एज ये वाली प्रोसेस जो होती है बेटा, ये इसको क्या करता है बेटा, ये इसको स्टॉप करता है। सेकंड थर्ड फंक्शन जो इस इंसुलिन की होती है बेटा, वो ये होती है कि ये क्या करेगा बेटा, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन, इट विल स्टिमुलेट दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज बेटा कॉल्ड एज अ लिपोजेनेसिस। उसके केस में हमने देखा था कि ग्लूकागॉन क्या करता है, वो बेटा लिपोलाइसिस करता है या लाइपोलाइसिस करता है, लेकिन ये वाला जो है ये बेटा क्या करता है, ये लिपोजेनेसिस करता है। लिपोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज अ फैट्स। सो this is the another function that is performed by this insulin. Next इसका काम क्या होता है बेटा कि ये स्टॉप करता है, या मैं लिख लेता हूं बेटा, इट प्रिवेंट्स व्हाट, इट प्रिवेंट्स लिपोलाइसिस। ये प्रिवेंट करता है बेटा लिपोलाइसिस को। लिपोलाइसिस का मतलब ये हुआ, इट डज नॉट अलो द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स टू टेक प्लेस। एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो, एज अ रिजल्ट इट आल्सो प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ, इट आल्सो प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ठीक है बेटा। कीटोन बॉडीज को ये अपीयर नहीं होने देता है आपके ब्लड में। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि ये बेटा लिपोलाइसिस को स्टॉप करता है। लिपोलाइसिस का मतलब ये हुआ, जब फैट की ऑक्सीडेशन होती है, जब फैट की ऑक्सीडेशन होती है तब जाके तो कीटोन बॉडीज बनेंगे, जैसे अभी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। लेकिन ये इसको प्रिवेंट करेगा और बेटा इसको भी प्रिवेंट करेगा। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय दिस स्पेशल हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज बेटा कॉल्ड एज इंसुलिन। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग दिस डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज mellitus and its types and what are the symptoms that are shown by that special disease that we call as a diabetes mellitus. Thank you.